Okay, students, welcome back for a very amazing class, amazing session. We have been talking about colloids, and in the colloids, we have discussed a lot of things, that what are the various types of the colloids, classification of the colloids have been discussed. We have talked about the physical state, 8 types of colloids based on dispersion medium and dispersed phase. Then we talked about the interaction between the dispersed phase and dispersion medium, lyophobic, lyophilic type of colloid, students. Then we have been talking about the associated colloids, multimolecular colloids, macromolecular colloids, and the cleansing action of soap is a very important question for the exam. We explained to you the formation of measles, students, and measles, how it drags the dirt out of your clothes, which is oil and fats in nature. And we have seen how more than 100 particles will combine to form measles, students, the sodium stearate, and we have told the sulfonic groups uh, in the detergents also, how they are acting as cleansing agents. These were some of the favorite questions which were asked by the examiners. Now the question is the preparation of the colloid, student, and you are very well aware actually that we have been telling you that there are 2 types of the colloid, students. What I told you, that you have been told about lyophilic and second lyophobic Lyophobic. colloids. Okay? Yes, sir. Okay. And which are more stable out of the two? Out of the two, Shivangi, which is more stable? Sir, lyophilic colloids are more stable. More stable. Why? Because they are surrounded by They are liquid loving. They are liquid loving. solvent loving, matlab dispersion medium, they have love for Yes, sir. that. So they are highly solvated, you are saying, highly solvated. Therefore, their preparation is very easy. If I want to prepare them, their preparation, you can prepare by direct mixing. Direct mixing. For example, starch, gum, gelatin, all these Rubber. rubber proteins. What you are doing basically, you will take a dispersion medium like water, hot, and you just mix and stir them. So by direct mixing, they can be prepared. So they are easily prepared. Why? That is why they are known as what type of colloids? I gave you a name for that, which was asked in the examination. Yes, sir. Extrinsic colloids. Are you sure? Lyophilic colloids. No, no, sir. It's intrinsic. Sorry, sir. It's intrinsic colloids. I have told you that you will not answer any question in a hurry. I hope you understood my point. Again and again, I say to you, you will be overconfident and then you will write something. Take your time, take your time. Don't answer a question without thinking. You see that when we do something without thinking, there could be error in that. What you said, that is why they are called intrinsic colloids, students. So far, so good. God bless you. Don't do mistakes and take your time. Okay? Yes, sir. So, Yes, sir. okay, then what? There is nothing much in this because you will mix them and make it. Then easily they can be prepared. All these which we are talking about, starch, gum, gelatin, and all these loving colloids which you are making. Now, what is the story about the lyophobic colloid, students? Are they stable? No, sir. They are less stable, you are saying. Yes, sir. They need stabilizing agents. And their preparation needs very special type of methods, students. Okay. And here we are coming forward with some of the methods by which we can prepare colloidal solutions. And there are different ways of preparing colloids. Chemical ways, then there are dispersion methods. Disperse means you disperse them by applying some force, dispersion methods. And there could be
special methods which we will see in the case of gold salt student, when we will apply high arc to them. And first thing we are talking is the chemical methods. Students, chemical methods. I'm talking of the chemical methods for the preparation of the colloids. As it is clear here, colloidal solution can be prepared by chemical reactions. What type of chemical reactions we are used to in chemistry, students? When I'm saying chemical reactions, tell me what type of chemical reactions we do in chemistry. There are many types of chemical reaction you have heard about. What type of, you have heard about oxidation, reduction, hydrolysis, double decomposition. So we can apply Yes, sir. those methods, students. Okay. And what will happen? We will perform a reaction, and the result will be that the particles will get aggregate to form the size of the colloidal particles or colloidal solutions. So the first method I have on the screen is, student, you can say double decomposition Decomposition. technique. What is the meaning of double decomposition? Have you heard about this reaction, students? Double decomposition. Double Yes, sir. decomposition. What is that? In chemistry, double decomposition. So don't think that what you studied in 10th or 11th is not coming everywhere. If you understood the things, it helps everywhere. Basic chemistry is same, and only the level keeps on increasing. I mean, the depth keeps on increasing. Got my point? Yes, sir. Questions are the same, book is the same, but the depth keeps on increasing as you go to higher and higher competitions. The mountain is becoming more big, higher and higher. So you have to climb high. Got my point? Yes, sir. So once you reach the top of the mountain, is that the end? Is that the end? Supposing you No, are, sir. No, sir. after you reach the top of the mountain, you will see another mountain bigger than which was not visible, which was not visible when you was on the ground. Got my point? On the ground, I was able to see a peak. And when I reached the peak, I found another peak bigger than which I never was able to see from the ground. That is Yes, the sir. story of the life. As you go higher, you will see things which were not visible to you. So double decomposition, you already know about it. What is happening? There will be some exchange of the, Exchange of some parts of the salt. I mean, usually here I have prepared arsenic sulfide salt. What I am preparing, this is a AS2S3 salt. So AS2O3, AS2O3 means what? AS, what is the valency then? Oxygen. How much is the valency of oxygen, students? 2 minus. 2 minus. And this then what will be the charge on arsenic? 3 plus. 3 plus. 3 plus into 2, 6. 3 into 2 minus 6. कैंची चला दी. क्रिस क्रॉस मेथड हो गया ना. Yes, sir. टोटल 0. तो आयंस मैंने बना दिए. देखो ये सब, we must understand what is happening. If you understand, then chemistry will be so easy for you. You will start understanding what is happening to the H2S, students. In H2S, what are the charge separations? What is the charge on hydrogen? +1. +1. And what is the charge on sulfide? Sulfur, it's -2. -2. So again, plus goes with minus. Plus minus, Minus. students. Yes. Yes, sir. Plus will go with the minus, and minus will go with the plus. Plus. This is how the reaction takes place. Understood? So I am just decoding and breaking the things into ions. Double decomposition. Double decomposition. This has got decomposed. This also has got decomposed. Positive goes with the negative. Negative goes with the positive. The other ion of the other ion. Now you understood all the game which we are playing in chemistry. Got it? Positive goes with the negative of the other, and negative goes with the positive of the other. Right or wrong? Yes? Clear? Yes, sir. Okay. Yes. You are understanding this? Yes, sir. You are liking that stories which are, Yes, sir. because Yes, sir. we are trying to understand everything now. What, how, because students only see this and they will forget in the paper. So you are saying this, but how the reaction takes place.
Am I right? What is the meaning of double decomposition? So it's very clear here. So what is happening is actually arsenic oxide reacts with the boiling water. Boiling water. It forms arsenic hydroxide, student, which easily reacts when H2S gas is passed through it. It forms AS2S3. These are colloidal particles in nature. So what you've been able to prepare is an arsenic sulfide colloidal solution, sol of AS2S3, students. Got it? Yes, sir. All right. So important reaction, for example, they have asked you give an example of the double decomposition method for the preparation of a salt. Okay? So we have a very good example of arsenic sulfide. This is arsenic sulfide, students. So this method can be used. Our main purpose is to understand, that's all. After understanding, we can then become memorizing part becomes very easy. If I simply do cramming, rattebaji, then I am lost. I am confused in the exam what is happening because I don't know how the reaction has taken place. Oxidation technique, students. I am talking of oxidation. So student, you will tell me what is oxidation. What is oxidation? What is oxidation? Sir, oxidation. Yes, sir. So oxidation, you know what is the meaning of oxidation? We used to talk of addition of oxygen, removal of hydrogen, students. But I'm saying removal of hydrogen. Yes or no? Classical definition. Yes, sir. And electronic definition is known to us. I mean, we can use that also. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. Increase in oxidation number is oxidation. Decrease in oxidation. Loss of electron. Yes, sir. Okay? Everything we are trying to Oxidation number. redox reaction. Redox There is oxidation. oxidation number is also very important. Reduction. तो हम Yes, तो sir. पता लग गया ऑक्सीडेशन नंबर का भी बहुत अच्छा रोल है केमिस्ट्री में। जितने ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिमाग तो है ना हम दोनों के पास, तो वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। या रट्टेबाजी करेंगे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। अब समझ में आई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो H2S है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मैंने पास कर दिया है, तो हाइड्रोजन कौन ले गया, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन ले गया, ये चले गई, ऑक्सीजन खींच के ले गया, ऑक्सीजन खींच के ले गया। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भाग गई और क्या बचा है, ये सल्फर। तो H2S का सल्फर बन गया। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है बताओ, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, which is being oxidized here? H2S की। H2S को तुमने ऑक्सीडाइज कर दिया। स्टोरी समझ में आई। हाइड्रोजन का लॉस हुआ है यहां से, ठीक है। ये देखो H2S का यहाँ पे मैंने फिर दिखा दिया तोड़ के, H2S को नेसेंट ऑक्सीजन मिली और ये बन गया H2O और सल्फर, और फिर H2S जैसे, तो सल्फर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेट फॉर्म करके क्या बना लेंगे, सल्फर सॉल्ट। यस सर, सल्फर सॉल्ट। तो H2S ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज सल्फर सॉल्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने Br2 को यूज किया H2S के साथ तब भी बना है सल्फर का सॉल्ट। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए स्टूडेंट्स आपको कुछ, ठीक है। यस सर, यू आर सच ए गुड इंटेलिजेंट गर्ल, आई मीन गॉट माय पॉइंट। यस सर, समझ आ रहा है सारा कुछ कि क्या कर रहे हैं, कोई आंखें बंद करके थोड़ी कर रहे हैं, रट्टेबाजी थोड़ी कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं केमिस्ट्री को, समझ रहे हैं। तो केमिस्ट्री समझ आ रही है? यस सर, ओके। तो यू आर गोइंग टू बी द टॉपर, यू नो, आई मीन मेरी फोटो छपने वाली है, तुम जरा दिमाग लगाओ। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ खड़ा, तो चिंता मत करो, अब तुम सारा समझ लो। अब नेक्स्ट देखो, मैंने ये तो हो गया मेरा ऑक्सीडेशन मैंने कर दिया है H2S की, देखो हाइड्रोजन निकल गई तो सल्फर बच गया और वही सॉल्व बन गया। अब आ रहा है रिडक्शन पर। लर्न मी व्हाट इज रिडक्शन। gain of hydrogen, removal of oxygen, और दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट रिडक्शन की? gain of electrons। हाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सॉल्ट्स ऑफ द मेटल्स। कौन से सॉल्ट्स अच्छे होते हैं जिनके तुम बना रहे हो सॉल्ट। गोल्ड की बात बहुत करता हूँ मैं,
गोल्ड सॉल्व बना रहे हैं स्टूडेंट और सिल्वर के सॉल्व बना रहे हैं स्टूडेंट, बोलो यस और नो। Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही है क्योंकि ये बार बार आता है गोल्ड 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 के सॉल्व। देखो इसका स्पेशल मेथड भी हम बताएंगे आपको, ब्रैडी कार्क मेथड। तो Okay. गोल्ड सॉल्व आ गया शिवांगी, सिल्वर सॉल्व आ गया। आप देखो कि गोल्ड का जो साल्ट हमारे पास वो क्या है, AuCl3। तो बताओ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड हियर स्टूडेंट्स। Sir, it is +3. ठीक है, ये Yes, sir. -1 था तो यहाँ पर -1 and -1 +3. चार्ज था स्टूडेंट, तो ये +3 में है। Cl का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हमने रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, देखो यहाँ Au से Au में जाना है। बताओ रिडक्शन होगी, ये 0 में आ गया, Yes, sir. 0 में आ गया. 0 में आ गया। तो +3 से 0 में आया तो रिडक्शन हुई, Yes, sir. किससे करवाओगी ऐसे। फिर हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, टिन क्लोराइड। देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। टिन Okay. कौन से ग्रुप में आता है, विच ग्रुप इज टिन प्रेजेंट। सारी केमिस्ट्री शुरू हो गई हम लोग। देखो हम अभी सारे ग्रुप पढ़ने वाले हैं, तो वो तो इस तरह से वो सारे ग्रुप में। टिन, ये कौन सी स्टेट थी टिन की, टिन क्लोराइड हो रहा है यहाँ पर, हम यूज कर रहे हैं टिन क्लोराइड। इसके अंदर +2 है और ये किस में चले जा रहा है, SnCl4 में। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन हियर स्टूडेंट्स, ऐसे +4. +4 से +2 में जा रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, Reductant. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे Yes, हमारा sir, रिड्यूसिंग reducing. एजेंट टिन क्लोराइड है स्टूडेंट्स। इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, इसने रिड्यूस कर दिया है गोल्ड के सॉल्ट को इनटू द गोल्ड, तो ये गोल्ड सॉल्ट बन जाएंगे। समझ में आई स्टोरी। Okay. Okay. तो इस तरह से टिन क्लोराइड हियर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स। टिन हैज a strong tendency to move from +2 oxidation state to +4 oxidation state। टिन +2 से +4 में चले जाएगा, तो इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि इसकी +4 स्टेट भी स्टेबल होती है स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, +2 से +4 चले गया, तो यहाँ पर गोल्ड के सॉल्व बन गए। यहाँ देख रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने यूज किया, तो उसने भी कर दिया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए तो। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। Formic acid. तो वो तुमने एक सिल्वर मिरर टेस्ट भी किया था, तो उसमें क्या हो रहा था, टॉलरेंस रीजन। तो यहाँ पर हमने फिर इसको रिड्यूस कर दिया गोल्ड के सॉल्व्स को। और सिल्वर का सॉल्व बनाना है तो टैनिक एसिड एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, उससे सिल्वर के सॉल्व बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सॉल्व बने हैं वो कैसे बने हैं स्टूडेंट्स, बाय रिडक्शन। इनको नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। Okay. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने डिफरेंट केमिकल मेथड्स का यूज किया है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन कौन से 3 बताए मैंने अभी तक। Double decomposition, oxidation and reduction. तो इसमें तो हमें समझ आ गई कि कौन ऑक्सीडाइज, हाउ इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कैसे हमने ऑक्सीडाइज किया, किसको किया था, H2S को। यहाँ पे पता लगा किसको हमने रिड्यूस किया। ये तीनों हमने कर लिए। ओके, Yes, sir. अच्छा नोट कर लिया। Yes, sir. ओके, अब देखो कि एक और वन मोर थिंग यू हैव हर्ड अबाउट इट, हाइड्रोलिसिस क्या होती है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोलिसिस की है केमिस्ट्री में। वी आर डूइंग लॉट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या करते हो तुम हाइड्रोलिसिस में, हम कहते हैं ये साल्ट है जी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। किसकी हाइड्रोलिसिस हुई, साल्ट की हाइड्रोलिसिस कर दी तुमने। तो क्या, व्हाट आर यू रिएक्टिंग विद वाटर। Water. तो वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है, तो वो क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। तो FeCl3 जो होते हैं, देखो FeCl3 जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। Okay. तो ये क्या बनाएगा, देखो Fe की वैलेंसी कितनी है बताओ, Sir, +3. Cl माइनस है, -1. और यहाँ पे H+ और OH माइनस होते हैं स्टूडेंट्स। तो 3 चाहिए था इसको, कितने, 3। 3. तो फिर इसको ये देख ही रहे हो, हाइड्रोजन लगी हुई है यहाँ पर। तो फिर हमें पता है कि यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोलिसिस है, कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, 3 हैव गॉन, 3 लेफ्ट। बोलो सही लिखा गलत लिखा मैंने। Yes, sir. तो तोड़ दिया। Yes, sir. अब ये 3 है तो ये 3 इसके साथ माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस के साथ चले गए। तो Okay. क्या बना दिया तुमने, FeOH whole thrice 3HCl। and तो फेरिक HCl. हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो क्या करेगा, एक सॉल्व बना लेगा।
Okay. सॉल्व बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये एड्सॉर्ब भी करता, कुछ आयन हम देखेंगे कौन से आयन एड्सॉर्ब करने वाले हैं, जो कॉमन आयन होते हैं वो एड्सॉर्ब कर लेते हैं, वही अकॉर्डिंग टू दैट इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज इन द कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे FeOH3 के सॉल्व बन जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्व बन गए स्टूडेंट्स। Okay. तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट सोडियम सिलिकेट का भी है, उसको हम जब करते हैं हाइड्रोलिसिस विद HCl तो वो भी एक सॉल्व बनाता है, उसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड सॉल्व, सिलिसिक एसिड सॉल्व। ये भी एक वी हैव गिवन एग्जांपल ऑफ दैट स्टूडेंट्स। Okay. तो यहाँ पे स्टोरी समझ आ गई हमें केमिकल Yes, sir. मेथड्स की। Yes, sir. अब हम कह रहे हैं जो प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, lyophilic colloids have strong affinity between particles of dispersed phase and dispersion medium. Therefore, students, these colloidal solutions are readily prepared by simply mixing under ordinary condition. ठीक हो गया ये? तो लायोफिलिक Okay. तो इजीली बन जाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल आए? जेलेटिन, गम, स्टार्च, Gum, एग। starch, egg, albumin, etc. Okay. तो कोई स्पेशल मेथड मैंने यूज नहीं किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। गॉट इट? Yes, sir. यहां तक हमें समझ आ गई। अब क्या कर रहे हैं हम कि देखो कोलाइडल की मिल्स होती हैं, जैसे प्रिंटिंग इंक वगैरह ये बनानी चीजें हैं, टूथपेस्ट वगैरह, इसके लिए वो क्या करते हैं सब, वी टोल्ड यू दे आर ऑल कोलाइडल इन नेचर। तो डिस्पर्शन मेथड्स हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है बताओ जी? डिस्पर्स करना, ठीक है? अब यू आर अवेयर देयर इज अ ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको डिस्पर्स करना है, मतलब बिखेरना तोड़ है, देना, तोड़ देना। तोड़ देना, इनको तोड़ना है भैया, बिगर पार्टिकल्स होंगे। तो यू आर हैविंग बिगर पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है शिवानगी? बिगर पार्टिकल्स, ठीक है? इसको तोड़ेंगे Okay. कैसे तुम? क्या करोगे? किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या करोगे? फोर्स लगानी होगी। तो मैकेनिकल, एक तो मैकेनिकल ही होता, ऐसे जो मिल्स होती है मान लो किसी चीज को भी, उसमें क्या करेंगे? ग्राइंड करोगे तुम पार्टिकल्स को, तो सस्पेंशन होगी। सस्पेंशन मींस जो बिगर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्पर्स करेंगे, तोड़ेंगे, उनको मूव Okay. करेंगे किसी तरीके से भी बहुत। तो लार्जर पार्टिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स, उनको वी विल ब्रेक देम बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। एक मैकेनिकल डिस्पर्शन की बात चल रही है यहाँ पर। तो जो मतलब एक तरीके से मिल होती है, मशीन होती है, इसे कोलायड मिल कहते हैं स्टूडेंट्स, कोलायड मिल कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ Okay. पर वो रोटेट करेगी बहुत हाई स्पीड पर, और वो इन्हें ब्रेक कर देंगे। लार्जर पार्टिकल्स विल बी ब्रोकन डाउन इन द मशीन, इन ए मशीन, ग्राइंड कर देंगे इनको। जो चक्की होती है जैसे आटे की, तो उसको क्या कर रहे हो तुम? ग्राइंड करोगे। Yes, sir. तो क्या कह रहा हूँ, सस्पेंशन ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर इज एडेड टू द मिल। अब यह तरीके से डिस्क लगी होती है यहाँ पर, ये देखो मेटल की डिस्क है, एक ऊपर और नीचे ऐसे घूमती हैं। और एग्जैक्ट मशीनरी की वी आर नॉट इन नीड ऑफ हियर, neither this going to be asked in the papers, but we have just shown you small picture, ठीक है? वो डिस्क Okay. होंगी, तो उनको एडजस्ट करेंगे, एंड वो जो सस्पेंशन है, कोरस सस्पेंशन विल बी सब्जेक्टेड टू ग्रेट शीयरिंग फोर्स गिविंग राइज टू पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे डिस्क होंगी, ये सस्पेंशन है, ये ड्राइविंग बेल्ट होगी स्टूडेंट, देन वी विल रोटेट इट, ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है कि ये बन के बाहर आ रहे हैं। तो कौन कौन से? ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निशेस, डाइज, ये सब इसी मेथड से वी कैन प्रिपेयर। समटाइम दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग पेंट्स, ना यू कैन सी दे हैव सच थिंग्स। पेंट्स बनाते हैं, आपके सामने मिक्स करते हैं चीजें। क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके पास, और उन्हें लिक्विड में मिक्स करके वो जो भी कलर यू वांट दे प्रिपेयर इट, चार्ट होता है उनके पास। तो ये डिस्पर्शन मेथड होगी, ठीक है? Okay. मैकेनिकली मैंने मतलब मैकेनिकली आई हैव बीन एबल टू ब्रेक द सस्पेंशन इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस थी तुम्हारे पास, तो उसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? ब्रेक कर दिया। कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, ओके? Okay, sir. चलो ये भी हो गया।
ऑलराइट, अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ पे देयर इज अ स्पेशल मेथड कमिंग व्हिच इज कॉल्ड Brady-Garg मेथड। देखो दे हैव आस्क्ड इन द बोर्ड पेपर, explain Brady-Garg method, student. You have to explain the Brady-Garg method, students. Now, what we had metals like gold, silver, platinum. देखो, they have very high melting points. You want to prepare the salts of these students. तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रोड्स। व्हाट वी आर डूइंग, वी विल मेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गोल्ड। स्टूडेंट, गोल्ड का सॉल्व बनाना है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ गोल्ड बनाएंगे। अब गोल्ड बना लिया हमने। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं, गोल्ड की बार्स हैं जिनके इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ये गोल्ड है, इनके हमने I made the electrodes, students। और ये एक मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है स्टूडेंट्स, देख रहे हो वाटर जो भी है डिस्पर्शन मीडियम है। और यहाँ पर एक आइस बाथ रखा गया है। आइस बाथ क्या करेगा, कंडेंस करेगा। यस सर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, दिस इज इन्वॉल्विंग डिस्पर्शन एंड condensation, though we are using two parts। so what we will do students, silver, platinum और gold we will use उनके we will make electrodes of them। यहाँ पे देख रहे हो एक माइनस एक प्लस, तो बैटरी लगेगी और क्या लगेगी, फिर एक हाई वोल्टेज अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। ओके सर। तो एक हाई आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। बताओ हाई आर्क क्या होती है, बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट कर देती है। यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। एक्चुअली वो बहुत आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं बीम के हाई एनर्जी के। जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, आयंस, व्हाट विल दे डू, दे विल वेपराइज दिस गोल्ड। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर विल बिकम वेरी हाई स्टूडेंट्स, और वो क्या कर देंगे, वेपर्स बन जाएंगे। किसके, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लाटिनम के। तो वेपर्स कहाँ जाएंगे फिर, ऐसे ऊपर, बहुत फाइन पार्टिकल्स, वो कोलॉइड्स बन जाएंगे ना। फाइन पार्टिकल्स होंगे जब वो नीचे गिरेंगे, किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में। तो डिस्पर्शन मीडियम में आ जाएंगे वो, ठीक है। बट डिस्पर्शन मीडियम में व्हाट आई एम डूइंग, आइस बाथ है। क्या है, आइस बाथ। तो ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा, कंडेंस हो जाएगा। तो फिर ये पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। किस साइज में आ जाएंगे, कोलॉइडल साइज में। कोलॉइडल साइज। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ब्रैडी ने। इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। एक्सप्लेन द Brady-Garg मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ gold salts। They are lyophobic in nature, students, and such salts, you know, when we are preparing it, special methods are being used. High electric arc is applied, temperature will rise very high, vaporization will take place, then condensation will take place. So here the dispersion and condensation both are applicable. Sometimes they ask you what is the principal, dispersion and condensation, students. So dispersion medium is kept cooled by ice, high electric arc is struck, tremendous heat is generated, and you are able to prepare colloidal solution. To stabilize them, you are adding what, small amount of KOH. Okay. The question usne, once they ask question what is the role of KOH, why it is added, student,
स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH इज एडेड. क्या ऐड किया मैंने? KOH. What is the role of that? Because It these are, acts as a stabilizing agent. they are not stable, so small amount is needed as a stabilizing agent. ठीक है. Yes, sir. तो ये भी हमें समझ आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ. ये क्लियर है? Yes, sir. Important है. इसको हमने स्टार लगाया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पेपर, तो हमें पता होना चाहिए. ये कैन बी आस्क्ड इन द पेपर्स. ठीक है, यहाँ भी हो गया. देखो अब एक और चीज बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग आस्क्ड. स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट इज पेप्टाइजेशन. दैट व्हाट इज पेप्टाइजेशन स्टूडेंट्स? व्हाट इज पेप्टाइजेशन? देखो, in chemistry you are aware of precipitation reactions. बोलो. Have Yes, you sir. seen precipitation reactions, students? Yes, sir. What is a precipitation reaction? A reaction in which an insoluble precipitate is formed. हाँ, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें you will be able to form precipitates. हमने देखा AgCl, AgBr, AgI precipitates are there in the chemistry labs. Ferric hydroxide precipitate is prepared, students, for testing of the iron in the chemistry labs. तो ये सब हम we experience in chemistry lab, students. अब पेप्टाइजेशन में हम क्या करेंगे कि those freshly prepared precipitates we will break them into colloidal solid. तो precipitate जो होगी, our precipitate, students, what we will do, we will convert this into colloidal sol. तो इनका हम colloidal sol बनाने जा रहे हैं. How we will add small amount of electrolyte. क्या ऐड करते हैं? Small amount of electrolyte, students. और उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट. Okay. स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने डाल दिया पेप्टाइजिंग एजेंट, शेक कर दिया. वो क्या होता है फिर? पार्टिकल्स जो होते हैं सब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के, वो टूट जाएंगे. दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड फाइनर पार्टिकल, स्टूडेंट्स. सो दैट्स द कोलाइडल सॉल्यूशन. द रीजन, क्या रीजन होगा बताओ? कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो वो ब्रेक हो गए और आपको मिल गया कोलाइडल सॉल्ट. स्टूडेंट्स, we are going to discuss this at a later part of this. I mean, we will tell you when origin of charge. Actually what happens is there are charges which are present on the surface of colloids, which are responsible for the stability of the colloid, students. Okay. If we remove those charges, then what happens? If the charges are removed, they will become coagulate, and if they absorb certain ions on their surface, what will happen? ये क्या करते हैं? Absorb कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? एड्सॉर्ब आयंस. Adsorb ions. तो सबके ऊपर सेम चार्ज आता है, तो फिर रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो वो फिर टूट जाएंगे और दे विल बिकम कोलाइडल इन नेचर. तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है? आयंस ही तो होते हैं, उसमें प्लस और माइनस आयंस मिलने वाले हैं. तो इसमें से कोई एक आयन वो एड्सॉर्ब करेगा, प्लस या माइनस. सबने प्लस से एड्सॉर्ब कर लिया मान लो, तो क्या होगा? फिर वो पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज आ गया, तो वो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएंगे. Okay. तो यहाँ पे हमने बताया, देखो आपको, कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, suitable ions from added electrolyte are adsorbed by the particles of the precipitate. तो प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, आपके पास है प्रेसिपिटेट, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, they will adsorb
क्या करेंगे, एड्सॉर्ब कर लेंगे। किसको, कोई आयन एड्सॉर्ब कर लेंगे, आइदर प्लस और माइनस, सेम चार्ज आयन को एड्सॉर्ब कर लेंगे। कौन से करेंगे वो देखेंगे हम, नेक्स्ट में आएगा। Okay. तो उससे क्या होगा कि दे विल कम इन द कोलाइड फॉर्म। फॉर एग्जांपल यू हैव ए सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, प्रेसिपिटेट बन गई। अब इसमें Yes, मैंने sir. क्या किया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 डाल दिया। मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया है डाइल्यूट AgNO3 स्टूडेंट्स। तो आयंस कौन से हैं, सिल्वर आयन। तो ये वाले जो पॉजिटिव है, Ag इसमें ऑलरेडी है, तो ये Ag आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, सिल्वर Ag ion से absorb कर लेगा. आ जाएंगे। The result of that, it will break into smaller and finer particles because all the particles will absorb the same charge ion। देखिए AgCl ने क्या सा एब्जॉर्ब कर लिया, Ag प्लस, तो इसके सरफेस के ऊपर ही आ गए सारे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये आयंस आने शुरू हो गए। इसी तरह बहुत देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, तो वो दूर दूर चले जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, इनके सरफेस के ऊपर ही आयंस एब्जॉर्ब हो। तो सर इस केस में AgCl ने Ag प्लस हाँ, एब्जॉर्ब वो करा, बाद में NO3 बताएंगे कि माइनस. ऐसा क्यों हुआ, वो बताएंगे हम ओके. आपको। अभी मैंने ओरिजिन ऑफ चार्ज नहीं बताया, वो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर। तो कौन से आयंस एब्जॉर्ब होंगे हम देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल द पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब ओनली वन टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब किसको वो पसंद करते हैं वो देखेंगे, वाई, किसको वो पसंद करते हैं वो देखेंगे। इसी तरह हियर क्या हुआ कि हमारे पास थी एक आयरन ऑक्साइड की, ये था प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, ये FeOH3, इसमें मैंने डाल दिया FeCl3। FeOH3 में आई हैव एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3। FeCl3 मेरा क्या बन गया, पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके. तो Fe3Cl3 में इसने कौन से आयंस ले लिए, Fe3 प्लस के, और ये इसके ऊपर आगे एब्जॉर्ब हो गए। तो फिर क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्ट. इसी बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, स्टूडेंट हैज बीन आस्क्ड। इसकी एप्लीकेशन भी दिख रही है कि कैसे ये कोलाइडल पार्टिकल बन रहे हैं स्टूडेंट्स। एक कोएगुलेशन है, दूसरा पेप्टाइजेशन है, इनकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। ओके. आई होप यू हैव नोटेड डाउन। यस सर. ओके, अब देखो स्टोरी कि कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन गए हमारे, जो हमने डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, जो भी हमारे कोर्स में अभी हम डिस्कस देम। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कोलाइड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कोलाइड्स हमने बनाए हैं स्टूडेंट्स, इनमें दे हैव गॉट इम्प्योरिटीज। इनमें क्या है, इम्प्योरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटीज होती हैं कोलाइड्स में। क्या होती है, इम्प्योरिटीज। अब किस टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं, देखो जब इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हम डालते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सेस होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, एक्सेस होता है। वो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से इम्प्योरिटी होती है हमारे कोलाइड्स में। कुछ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड बट एक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उससे वो टूट जाएंगे, तो इसलिए उनकी प्योरिफिकेशन की जाती है। तो व्हाट वी डू इन प्योरिफिकेशन स्टूडेंट्स, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की प्योरिफिकेशन कर रहे हो तो रिड्यूस करते हो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या करते हैं, रिड्यूस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज स्टूडेंट्स। और यहां पे मैं खास बात बता रहा हूं, टू रिक्विसिट, मैं कह रहा हूं रिक्विसिट मिनिमम। Why did I use this word students? Why I am using this word requisite minimum students? Why requisite minimum? बताइए, सारा जीरो क्यों नहीं कर दिया इसको? Because sir, if we will take out all the impurities, then the colloidal salt will dissociate. It will not be stabilized.
It Some amount of impurities are needed to it is stabilize not it. dissociating. It will precipitate, coagulate. Yes, sir. It will coagulate. उल्टा कह दिया ना तो coagulate बन जाएगा, मतलब वो coagulate हो जाएगा. So some amount of, I mean, charge is required on the colloidal particle. That's what we are trying to say, students. तो अब इसके लिए प्योरिफिकेशन जरूरी हो गई. तो प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ दिखाया गया है जिसको तुम मेडिकल टर्म्स में यू नो इट सो वेल स्टूडेंट्स. हैव यू हर्ड अबाउट डायलिसिस ऑफ किडनी? Yes, sir. बताओ Yes, फिर sir. क्या है, मेरे को तो कम आती है. यू टेल मी, यू आर मेडिकल स्टूडेंट. व्हाट इज दैट डायलिसिस? में क्या करते हो तुम? क्या है, किडनी की डायलिसिस होती है. यस सर. क्या करते हो उसमें? सर एक जैसे इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम एक डायलाइजिंग मशीन में से पास करते हैं. क्यों करते हो? सर जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द प्योर ब्लड इज तो वैसे अगेन. जो मतलब ऐसा क्यों होता है कि ब्लड जो होता है, जब कौन से लोग हैं जिनको डायलिसिस की नीड पड़ती है? सर मेनली पेशेंट्स ऑफ किडनी फेलियर. मतलब किडनी क्या काम कर रही है तुम्हारे बॉडी के अंदर? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. तो किडनी के अंदर कोई सिस्टम है ऐसा? यस सर. मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है कोई? यस सर. केमिस्ट्री शुरू हो गया. तुमने कहा कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, बार बार इसका यूज हो रहा है. देखो सेमी परमेबल तुम्हारे बॉडी के सेल्स में भी बहुत कुछ है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन्स क्या काम करती हैं स्टूडेंट्स? ये फिल्टर करती हैं. कुछ पार्टिकल्स इनमें से जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते. यही होता है. यस सर. परमिएबल टू समथिंग एंड नॉट परमिएबल टू समथिंग. तो डिपेंड करता है जो पोर साइज होते हैं. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, समझ गए? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है सब जगह. तो अगर हमने कोलाइड सॉल्यूशन को करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अगर डायलिसिस कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? जब फर्स्ट प्रोसेस का वो एग्जाम में पूछता है, एक्सप्लेन डायलिसिस. तो why you are doing it? In order to purify the colloidal solutions. So what we are doing, student? We are trying to remove the dissolved substances from colloidal solution. तो dissolved substances कौन से हैं students colloidal solution में? चार्जेस. हैं? Impurities किस चीज की हैं ज्यादातर? यही तो चार्जेस. हैं? चार्जेस. What you are saying? सर चार्जेस. अरे इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हें बताए तो हैं, ये ज्यादा जब एक्सेस हो जाती हैं, ऊपर लिखा हमने. तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको तो रिमूव करेंगे हम. तो उनके लिए व्हाट वी आर डूइंग, तो वी विल हैव यू टू यूज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन. देख रहे हो यहाँ पर एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन लगाई गई है स्टूडेंट्स. ये क्या है? एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है स्टूडेंट. यहाँ पे एक देख रहे हो ना, ये किस चीज की है? इसी कोई, ये मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है स्टूडेंट? व्हाट इज इट इज? यू ऑलरेडी नो किसकी बनती है. हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में कौन सी यूज कर रहे हो? इसका नाम भी पूछा जा चुका है पेपर में. कौन सी यूज कर रहे हो? सेमी परमेबल सर मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन की हो सकती है, जैसे कि एनिमल ब्लैडर होता है. हाँ, तो वो या एनिमल cellophane ब्लैडर यूज sheet. किया था, और सेलोफेन पेपर यूज किया था, और पार्चमेंट पेपर यूज किया था. पार्चमेंट पेपर. तो ये दे आर एक्टिंग एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स. तो हम एक बैग बना रहे हैं. वी आर मेकिंग ए बैग विच हैज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है. क्रिस्टलॉइड हमने लिखा. क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? वही जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे NaCl हमने बताए थे, ऐसे जो भी थे क्रिस्टलॉइड्स. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट कोलाइड्स का, वी टोल्ड यू अबाउट द crystalloids and colloids, how they were formed by थॉमस ग्राहम. तो वो क्रिस्टलॉइड्स जो हैं स्टूडेंट, और ये सॉल्व के पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. तो एनिमल ब्लैडर का यूज कर सकते हो, SPM. इनके अंदर दे हैव स्मॉल पोर्स. तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये जाते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. ठीक हो गया. यस सर.
आपके बॉडी में देयर आर इन द सेल्स आल्सो यू सी लॉट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग ऑन, Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है बहुत सारी, तो डिफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, और हमने क्या किया है कि यहाँ से वाटर फ्लो इन, यहाँ से वाटर आउट, फ्लो इन वाटर आउट, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये जो निकलते जाएंगे और वो क्लीन करते जाएंगे वाटर से हम, और उसके बीच में क्या रह जाएंगे, सॉल्ट पार्टिकल्स, जो जितना अमाउंट हमें चाहिए उसके बाद मतलब हम स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से ही आपकी ब्लड की प्योरिफिकेशन करते हैं ये जो डायलाइजर्स होते हैं, मशीन्स जो लगी हुई हैं, उनके अंदर सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो दे विल प्योरीफाई द ब्लड्स। Okay. तो ये प्रोसेस की प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। आप बताइए कि जब प्रोसेस स्लो होती है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत टाइम लेगा। Yes, sir. तो हाउ विल वी स्पीड अप द डायलिसिस स्टूडेंट्स, इसको स्पीड अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो हाउ टू स्पीड अप, इसकी स्पीड बढ़ानी है हमें, वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड अप। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो हाउ विल वी एबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस स्टूडेंट्स। By applying electric field, by generating an electric field, है, by applying electricity across the setup, अरे to इलेक्ट्रिसिटी generate तो an करंट electric, पास थोड़ी करेंगे, उसमें करंट पास कर देंगे तो generating an electric field. इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो टूट जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो क्या हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसमें क्या अप्लाई करते हैं, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोलिसिस होती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, वो नहीं। अब फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, फील्ड का मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर आपने दो प्लेट्स लगा देनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, तो होगा क्या, तो जो चार्ज्ड आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है वो क्या क्या होता है उनका, फिर जब वो अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो आयंस अपोजिट प्लेट्स की तरफ स्पीड अप हो जाएंगे। वी नो दैट anions move towards anode, cations move towards the cathode, तो वो स्पीड से भागेंगे। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम रिमूव कर रहे थे स्टूडेंट्स एक्सेस, वो फास्टर निकल जाएगा, फास्टर निकल जाएगा। तो इसको हमने कहा कि वी विल स्पीड अप। हमने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी स्टूडेंट्स। किसकी स्पीड बढ़ा दी, जो डायलिसिस हो रही थी, जो डायलिसिस हो रही थी। okay. तो यहाँ पर जो किडनी की भी डायलिसिस करते हैं वो सब ऐसे ही होता है आजकल। तो उनके पास जो मशीन्स होती हैं वो सब इलेक्ट्रोडायलिसर्स होते हैं, तो वो काफ़ी फास्ट काम करती हैं। वो काफ़ी टाइम लगता है, शायद मेरे को आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच टाइम इट टेक्स, बट मुझे इतना पता है कि देयर इज अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं इसके लिए। उनको वो डेट देते हैं, नंबर मिलता तब जाके वो करते हैं, क्योंकि वो मशीन्स बहुत कम हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, sir. जो पेशेंट है उन्हें ज़्यादा पता है, तो वो जब करवाने जाते हैं तो पता नहीं काफ़ी समय लगता, काफ़ी टाइम लगता मशीन के साथ जब जोड़ते होंगे। जो भी बहुत मेडिकल टर्म्स हैं, क्या बताऊँ, मशीन्स काफ़ी, मशीन इतनी है नहीं जितने पेशेंट्स हैं। तो ये सारा प्योरिफिकेशन जो हो रही है कोलाइड स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट, तो ये पहला मेथड हमने बताया जिसे बोलते हैं डायलिसिस। अब देखो एक और मेथड बता रहा हूं, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर्स स्टूडेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन तुमने पढ़ी है, ठीक है, Yes, sir. लेकिन
यहाँ पे तुम यूज करते हो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके जो पोर्स हैं इन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर उनका साइज बड़ा है, पोर साइज क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे तो नहीं चलेंगे। कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं तो उनका साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास कर जाएंगे, तो स्पेशल फिल्टर पेपर बनाने पड़ेंगे। उसी का नाम क्या दिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैंने ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन नहीं है, कोलाइडल पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट, ठीक है, बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स। तो हम स्पेशल फिल्टर पेपर बनाएंगे जिसके पोर का साइज स्मॉलर होगा देन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। माइक्रोमीटर्स में होते हैं इनके पोर के साइज, इसका बहुत छोटा होने वाला है। Okay. So colloidal particles can pass through ordinary filter paper, but because the pore size is too large, so pores of filter paper can be reduced। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो फिल्टर पेपर है, we want to reduce the pore size। क्या करना चाहते हैं, इसके पोर Reduce the साइज pore को size. रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम एक सोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं कोलाइड आयन सोल्यूशन। स्टूडेंट एग्जाम में उसने पूछा था व्हाट इज ए कोलाइड आयन सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया था। अब उसने ये पूछ लिया, मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, व्हाट इज ए कोलाइड आयन सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये होता है 4% सॉल्यूशन। लिखना क्या था हमें, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो, कंपाउंड कौन सा बताया मैंने, नाइट्रो सेलुलोज। Nitrocellulose. तो 4% सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स नाइट्रो सेलुलोज का इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। उसमें हम डिप कर देते हैं फिल्टर पेपर को और फिर उसको निकाल के हार्डन करते हैं। हार्डन करते हैं कैसे, उसको फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एक सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड, Okay. देन वी डिप दैट इन फॉर्मेल्डिहाइड स्टूडेंट्स, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। तो दिस फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। Ultra filter paper. तो इसके पोर साइज छोटे हो जाते हैं और फिर हम फिल्टर कर लेते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स विल, वो ऊपर बैठ जाएंगे और बाकी सॉल्यूशन निकल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन पास कर जाएगा। तो वो जो पार्टिकल्स हमारे रह जाते हैं ऊपर, फिर उनसे हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में डाल के कोलाइड्स बना लेते हैं। क्या Okay. करते हैं, विल पुट देम इन डिस्पर्शन मीडियम एंड फॉर्म द कोलाइड्स। समझ में आई स्टोरी। Yes, sir. तो ये पूछा जा चुका है कैसे बनता है ये, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द सॉल्यूशन, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether Alcohol and fluids, ether. and that filter paper is then dipped in formaldehyde and dried। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी स्लो प्रोसेस है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं वो, तो वो पंप लगा देते हैं जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वैक्यूम पंप भी हो सकता है, जिसे वैक्यूम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देंगे, वैक्यूम फिल्ट्रेशन कर देंगे हम। तो दैट विल बी देयर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग। अगर हम एयर, इफ आई रिमूव द एयर, वो क्या कर देती है, सक कर लेती है, सक कर देती है। तो इस तरह से Okay. हम स्पीड्स को इंक्रीज कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को की स्पीड को वी कैन इंक्रीज बाय अप्लाइंग द वैक्यूम पंप स्टूडेंट्स, और अप्लाइंग द प्रेशर। दो ही चीजें होती हैं, प्रेशर अप्लाई करो या वैक्यूम पंप अप्लाई करो। तो इससे क्या होगा कि दिस विल बिकम फास्ट। Okay. तो ये हमारा एंड हुआ यहाँ का कि कैसे हमने बनाए हैं स्टूडेंट्स, कैसे प्योरिफिकेशन की है कोलाइड्स की। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू मोर अबाउट कोलाइड्स। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड देयर इज एनी डाउट Yes, इन sir. what we have been telling you. No doubt, sir. Okay. Okay then, bye bye, and we'll see you in the next class. Thank you, sir.